Hello students, in this video I will teach you all exercises of lesson number 2, true friendship. Okay, first of all we teach Hindi word meaning. Word meaning: true सत्य, फ्रेंडशिप दोस्ती, अपोजिट विरुद्ध या उल्टा. ओके, रीच धनी अमीर, इंजॉय आनंद, पुअर गरीब, प्रॉब्लम समस्या. ग्रेजुअली धीरे धीरे, मंदारीन उच्चाधिकारी या उच्च अधिकारी. ओके, सर्वेंट नौकर, रिमेंबर्ड याद किया, फॉरगेट भूलना, होप आशा उम्मीद, एक्साइटेड उत्सुक हुआ, ट्रीटेड बर्ताव किया, स्टेल बासी, सक्सेज सफल होना, सिल्क रेशमी, मैरी शादी, सर्व्ड परोसा, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ. ओके, नाउ विल कम इंग्लिश वर्ड मीनिंग. ओके, मंदारीन an important person who helps the king to govern the country. Fond like interest, excited agitated, success achievement, silk a soft and expensive cloth made from silkworm, hope desire expect, indifferently without any interest, surprised something unexpected. Okay, now will come question number A. Choose the correct answer for the following question. Okay, number 1, Adam gave Peter option pen, paper and books, bowl, bucket and glass, house, car and job, toys. Which option is true? Number A, pen, paper and books. Okay, now will come number 2 point. Adam was very kind to option Peter, his wife, his mother, his children. Answer Peter is true answer. Okay, question number 3. When Adam was poor, Peter offered him option bread and butter, stale rice, sabji and chapati, soup. The answer of this question is stale rice. Okay, now will come number 4 point. Peter helped Adam by option giving him pen, paper and ink. Number 2 point, giving him money and food, sending his wife, asking him to live in his palace. The right answer of this question, sending his wife. Okay, the true answer. Okay, now will come question number B, fill in the blanks. Okay, ऑप्शन है इसमें आपका रिच, पुअर, मंदारीन, पुअर, पैलेस. ओके, नंबर 1 पॉइंट. इन चाइल्डहुड एडम वाज डैश एंड पीटर वाज डैश. एडम वाज रिच. ओके, RICH. ओके, एंड पीटर वाज पुअर, POOR, पुअर. ओके, नंबर 2 पॉइंट. Adam met Peter at his palace. PALACE. Okay, is the right answer. Number 3 point. Peter became a dash when he grew young. Mandarin. Okay, MANDARIN. Mandarin. Okay बच्चों, now will come number 4 point.
Adam was dash in studies when he was child. Adam was poor. Okay, Poor. Okay, poor आपका. So these are the answer of this fill in the blanks. Now we'll come question number C. State true or false about Peter. Okay, Peter made Adam very unhappy and annoyed. True. Okay, number 2 point. Peter's wife sold silk to help Adam. Yeah, true. Okay, number 3 point. Peter treated Adam very nicely when he met him first time. False. Okay, number 4 point. Peter wanted Adam to become like him. True. Okay, next point. Peter offered stale rice when Adam met him second time. False. These are the answer. Okay, now will come question number D. Answer the following question. Okay, first question. How was Peter when he was a child? Answer. Peter was very poor when he was child. Okay, this is the answer of the first question. Number 2 point. Was Adam very rich in his childhood? How was his attitude? Answer. Yes, his attitude was very kindness. Okay, number 3 point. Who became Mandarin first between Adam and Peter, and how? Answer of this question. Peter became Mandarin first between Adam and Peter. Okay, how? Then you say that because he was very fond of studies and supported by Adam by giving money to buy things like pen, paper, books, etc. Okay, now will come question number 4. How did Peter treat Adam first time? Then you give the answer as like this. Peter treated Adam very badly. Okay, now will come question number 5. What did Adam decide to do when he met Peter? Then you give the answer of this question. Adam decided that he would work hard to become a rich Mandarin like Peter. Okay, this is the answer of the number 5. Now will come question number 6. A lady helped Adam when he was sad and unhappy. How? Then you give the answer as like this of this question. She cooked and served for him, bought pen and paper to study. Here is the comma use. Okay, like this. No, okay, no comma. Bought pen and paper to study. Okay, now will come question number 7. Could Adam marry the lady who lived beside his house? Why? Then you give the answer. No, because that lady was the wife of Peter. Okay, now will come grammar fun, page number 13. Okay, read this sentence, listen carefully and try to understand. When they grew up, Peter became a Mandarin. ये क्या होता है आपका स्टेटमेंट होता है. ठीक है, मतलब जहाँ पर जिस सेंटेंस में लास्ट में ऐसे फुल स्टॉप आएगा उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मतलब फुल सेंसिबल सेंटेंस होगा, उसे बोलेंगे स्टेटमेंट. ओके, नंबर 2 पॉइंट. हु आर यू? ओके, इन द लास्ट क्या चाहिए आपका क्वेश्चन मार्क्स ना, तो यू से इज द क्वेश्चन. ओके, नंबर 3 पॉइंट. क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका. लुक एट दिस फ्लावर, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, नंबर 4 पॉइंट. गो टू योर रूम एंड डू योर होमवर्क्स. आपका देखो गो टू योर रूम मतलब ये आपको कमांड कर रहा है. ठीक है, तो जहाँ पर कमांड की बात आती है वहाँ उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, हम यहाँ बोल सकते हैं कमांड. ओके, नाउ यू सी सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड. नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस. नंबर 1
डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ओके। यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। निगेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं आपका, ओके। तो डिक्लेरेटिव में क्या होता है, टेल अस समथिंग एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, दे वेंट टू लंदन लास्ट नाइट। तो ये सिंपल आपका है। अगर ये ऐसे होता दे डिड नॉट गो टू लंदन लास्ट नाइट, तब भी ये क्या आपका है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, ओके। तो पॉजिटिव मतलब इसमें मतलब कि नॉट नहीं आता है, और निगेटिव में क्या होता है आपका, यहाँ पर नॉट आता है, ठीक है आपका। तो जो ये सेंटेंस होते हैं उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या यू कैन से असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ओके बच्चों। नंबर 2 पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आस्किंग क्वेश्चन करते हैं। तो आस्क अबाउट समथिंग, एग्जाम्पल, विल यू फादर कम टू नाइट, ओके। तो विल, तो वही विल इज है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ गया, ठीक है। तो इट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपसे ऐसे बोल देगा कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जहाँ पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ओके बच्चों। नंबर 3 पॉइंट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। शो एक्साइटमेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एग्जाम्पल, अलास आई लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आप आ गया आपका एक्सक्लामेशन मार्क। तो जिस सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क इस तरीके से आपके आएंगे, चाहे वो बीच में हो चाहे वो लास्ट में आते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो उस सेंटेंस को कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके। नंबर 4 पॉइंट, इम्परेटिव सेंटेंस। गिव ऑर्डर और कमांड और मेक रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस कब होता है, जो उसमें कमांड की बात आएगी, ऑर्डर की बात आएगी और रिक्वेस्ट की बात आएगी। तो यहाँ पर होगा प्लीज़ गिव मी योर पेन। आप क्या करो, रिक्वेस्ट करो ना, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, कृपया अपनी पेंसिल दीजिए। तो जहाँ पर रिक्वेस्ट की बात आएगी वो क्या आपका होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको समझना आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर ई एंड पेज नंबर 12, सॉरी पेज नंबर 14, ओके। यू कैन सी इन योर बुक, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स at the end of each sentence, also write the type of sentence, okay। नंबर 1, पंक्चुएशन का मतलब होता है जो मार्क्स, जैसे इंट्रोगेटिव ना, जैसे मान लो क्वेश्चन जैसे इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, जहाँ पर ऐसे आते हैं उसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, यस, ओके। नंबर 1 देखिए आप लोग, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ओके। इसके लास्ट में वीक ना आपका ये सिंपल आपका है, तो इसमें क्या लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब ये लोग जहाँ पर फुल स्टॉप आता है तो उसे हम क्या कहेंगे आपका, उसे कहते हैं स्टेटमेंट, है ना। यू कैन से स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ओके ओके बच्चों। नाउ वेलकम नंबर 2 पॉइंट, वी वर्शिप गॉड डेली, ओके। लास्ट में क्या लगा देंगे, इसमें फुल स्टॉप को लगाना है, ओके। तो जो फुल है ना, इसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। तो ये देखो, वी वर्शिप गॉड डेली, ये कौन सेंटेंस है, ये भी कौन सा आपका है, वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो DECLARATIVE, ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या हम इसे कह सकते हैं स्टेटमेंट, आपका पीछे आपको दिया गया था। नंबर 3 पॉइंट, हु इज़ गोइंग फॉर द पार्टी टू नाइट। देखो यहाँ पर हु ना, अभी क्या कर दिया, क्वेश्चन, आपसे आस्किंग क्वेश्चन पूछ दिया आपका। तो जहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। तो जब क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया तो ये कौन सेंटेंस हो गया आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो VE, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका। नंबर 4 पॉइंट, ही इज सेव्ड, ओके। तो देखो इसमें आ गया पर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसमें बीच में यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क्स, ठीक है। तो जहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं वो क्या होता है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो और फिर इसके लास्ट में लगा देंगे, फुल स्टॉप भी लगाना जरूरी है आपका, फुल स्टॉप, ओके। और एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पीछे आपको दिया गया बुक्स में, चेक कर लेना स्पेलिंग, ओके। नंबर 4 पॉइंट,
इज राम देयर, तो वो इस पहले आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स। जब क्वेश्चन मार्क्स तो यू से हियर इट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, ओके बच्चों। नाउ वेलकम क्वेश्चन नंबर 6, हुर्रा वी वॉन, तो हुर्रा गया ना, तो यहाँ लगा, हुर्रा के बाद लगा देंगे एक्सक्लामेशन मार्क्स और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ओके। और फिर ये कौन सा आपका है एक्सक्लामेशन मार्क्स जिसमें आता है उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका। तो इस तरीके से आपको करना आपको है। अभी तो देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम नॉट वेल, यू आर नॉट ऑन टाइम टूडे, आई कैन नॉट स्पीक, ओके, इंग्लिश आपका। देखो इन दिस सेंटेंस बच्चों, इन दिस सेंटेंस, इसमें देखो नॉट है, नॉट है, नॉट है, तो जिस सेंटेंस में नॉट आएगा उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, ओके। प्रॉब्लम। नाउ विल कम क्वेश्चन ऑफ, इफ देखिए आप लोग, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस, तो आपको निकाला निगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर, सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड बॉलर आपका, तो जब इसको निगेटिव में करेंगे लिखेंगे सचिन तेंदुलकर इज़ नॉट, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, NOT, नॉट, और सब उतार लेंगे आपका, ठीक है बच्चों। नंबर 2 देखिए आप लोग, इट इज़ अ होली डे आपका, तो इसमें नॉट है ना, तो इसका लगाएंगे, नॉट का लगाएंगे, इच के बाद लगा देंगे नॉट आपका, इसके बाद, ओके। नंबर 3 पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टुमारो आपका, तो इसमें निगेटिव करना आपको है, तो इच के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, NOT, नॉट आपका, इस तरीके से आपका। नाउ नंबर 4 पॉइंट, ही विल गो टू मार्केट टूडे, तो ही विल आपका, तो विल के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे, तो इस तरीके से आपको करना आपको है, ठीक है। नाउ विल कम क्वेश्चन नंबर जी, सर्कल द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन रेड आपका, ओके। तो ये अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आपका, ठीक, ये सब क्या है आपके क्वेश्चन है, और ये बताना आपको है जिसमें 3 ऑप्शन, 1 2 3 ऑप्शन बच्चों, तो ये 3 ऑप्शन आपको ये यहाँ पर दिया गया 1 2 3, तो इन तीनों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। तो फर्स्ट नंबर डेनी है ना, तो डेनी का अपोजिट, तो डेनी का मतलब होता है अस्वीकार होता है, मतलब कि नहीं लेना, अस्वीकार करना, तो इसका उल्टा क्या होता है, एक्सेप्ट, ओके। इस तरीके से करना सर्कल आपको। नंबर 2 पॉइंट हो क्विक ना, क्विक मतलब होता है जल्दी से, तो इसका क्या पूछा आपसे, अपोजिट पूछा आपसे, स्लो, तो लिखिए स्लो कर देंगे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, इम्पटी आपका, तो इम्पटी मतलब खाली होता है, इसका अपोजिट होता है फिल आपका, तो फिल कर दोगे, इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टार्ट, तो स्टार्ट आपका है ना, तो स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, तो इसका अपोजिट क्या होता है आपका, फिनिश मतलब समाप्त होता है आपका, यू डू एज लाइक दिस सर्कल। 5th पॉइंट, फास्ट का मतलब होता है तेज, इसका अपोजिट क्या होता है आपका, स्लो, ओके, यू सर्कल एज लाइक दिस। नाउ विल कम क्वेश्चन नंबर H, राइट द वावेल्स, वावेल्स आपने पढ़ा होगा कि वावेल्स कितने होते हैं, 5, AEIOU, तो ये आपके वर्ड आपको दिए कि इसमें से करना चूज़ करना है कि इसमें वावेल्स क्या है। तो वो अम्ब्रेला में आपका वावेल्स कौन सा, इसमें को, इसमें U है, उसके बाद यहाँ पर E है, और यहाँ पर A आपका, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, एजुकेशन में कौन सा आपका है, आपका E है आपका, उसके बाद U, उसके बाद A, उसके बाद I, उसके बाद O आपका, ठीक है। यू फील एज लाइक दिस। नंबर 3 पॉइंट, इंग्लिश आपका, इसमें देखो आपका E आपका है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, I आपका, ठीक है, I। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज आपका, इसमें आपका A होगा, आपका U होगा, A होगा और E होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा बुक फिल करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।